Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, ladies and gentlemen, in lecture number 14. We have started business analysis in other session, and we do know that there are 7 knowledge areas in business analysis, and this is the 4th one we are actually going through. So if we can remember, there is a knowledge area which is business analysis, planning and monitoring. We had 2 sessions on that, and then we had 1 session on elicitation, and then we had 2 sessions on requirement management and communication, and now we are having 2 sessions on enterprise analysis, and with that we will be completing our 4 knowledge areas, and then we will proceed to the remaining 3 knowledge areas in upcoming classes. We do now remember why I keep repeating this thing, because I think this should be the point only. If we can understand what is the structure of defining any task and any knowledge area, then rest is very logical. We do know that there are 7 knowledge areas, and every knowledge area is defined further by the tasks, and those are called the tasks of that area. We do know that there are like 6 tasks for business analysis, planning and monitoring knowledge area, and then 4 tasks were there for elicitation knowledge area, and then there were 5 tasks for this knowledge area of requirements management and communication, and 5 tasks are there for enterprise analysis. So other day we had covered 2 tasks. So what have we discussed in previous lecture? Let's have a look on that. So we had discussed about enterprise analysis. Remember the business need and assessing capability gaps, and then we had seen input and output diagram, and we had discussed 5 tasks of enterprise, and we had talked on 1 task in detail, define business need, and then we had talked on. So enterprise analysis is all about evaluating why the need is there, how can we understand the requirements better, and how can we achieve the objectives and goals, and we had talked about goals and objectives, and how they relate to the mission and vision of the organization. And we have this very good pattern. We identify all the tasks, and initially we identify all the inputs for every task. You know, if something is common, we write it once, and we identify all the inputs which are being used in that knowledge area, and then we actually go and we are having outputs from that knowledge area. So every task is having inputs and outputs. So there are 5 tasks or enterprise analysis, and we had discussed in good detail about defining business need, why the initiative or project is being needed, and how to get to the requirements, how should we attend to those requirements which are there, whether they are technical or they are business or whatever that is. So the output of this task is the business need, which is input to so many other tasks we have already discussed, and we are going to discuss. And then we had talked on assess capability gaps task. In that task we had learned how to
find out the capability gaps. So our organization is somewhere at some state, so we need to want to improve, or we need to initiate a project, or we need to do something for business analysis, through business analysis activity, and then we come across this level, which is actually target level. So what we need to do is we need to understand where we are right this moment. So we need to understand that. So we do apply techniques, and we do take care of that. And then if we set and we acknowledge and we do know that what is the current state, and now second thing is to set a target, what is actually being foresighted, what is the level we want to achieve. So now these are two things which are set. This is the current state, and this is the future state we want of our organization. So there comes the third question. How can we reach to that point? Whether the capabilities of organization currently available with the organization are adequate or not. So if those are adequate, very good. But if those are not adequate, we need to enhance. We need to carry out necessary solution. So a solution scope is actually been discussed over there as well. So this is what we had discussed in previous lecture. And now let's move to this lecture. And first we will start with knowledge areas. Just to recap the things. So there are 7 knowledge areas we have. We have completed this. Business analysis, planning and monitoring is covered. And how do we carry out business analysis, and how to set the matrices, and how to check the performance of business analysis activities. This has already been covered. And then we had talked on elicitation, how to get the requirements from the stakeholders, their stated requirements as well as their concerns, which they are not stated, but they are concerns. So we actually record, and we have talked how to how to get those information from the stakeholders from diverse backgrounds and of diverse needs, and we check if their requirements are aligned with the scope. So when we are collecting the requirements in such a manner, we are actually denying and we are saying no to the scope creep, and this has already been done. And then we had talked on requirements management and communication. How do we actually get those requirements approved, and then how do we have the requirements traced and validated and stuff like that. So and then we are into enterprise analysis now. These are covered, and this is going to be completed in this session, and then we will be left with 3 knowledge areas. We will be spending some sessions on these knowledge areas, and with that we will be completing business analysis thing. And after that, after completing these knowledge areas, we will be having sessions on the techniques which are being used, and we are actually just stating them, like this technique should be used, and to some extent to what extent we should use that technique. That is been discussed by now, but then we will discuss the techniques, like how to carry out those techniques, what do we mean by that technique, and standard definition of that thing. So this is what we are going to do in business analysis seminar, and then we will proceed further. So let's have the definition again. We have actually completed the task, define business need, and assess capability gap, and let's have the definition again. So the enterprise analysis knowledge area describe the business analysis activities
and necessary to identify a business need, problem or opportunity, define the nature of solution that meets the need, and justify the investment necessary. So what we have done is, अगर हम अभी तक की बात करें, so we have already identified the need and problem opportunities. This has already been done. Business need, defined business need actually does that thing, identifying of business need. So that has already been done through one task. Now defining the nature of solution that meets the need. So before we go and define, we need to have actually this gap with us, capability gap with us. So a part of this thing has been done, and now we are going to define the solution. And in the last but not the least, we are going to talk of that thing as well, justifying the investment necessary over there. So this is a kind of business plan, and let's business case and plan. So another thing which is very important, enterprise analysis outputs provide context to requirements analysis. So ये हमारा अगला जो हमारा नॉलेज एरिया आ रहा है, बेसिकली जो भी हम यहाँ काम करेंगे, जो हम कैपेबिलिटीज़ का हम देखेंगे जो नीडेड हैं, जो हम बिजनेस नीड देखेंगे, जो बिजनेस हम केस देखेंगे, वो सारे के फिर जो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने में हमारे जो है वो काम आएगा. एंड टू सोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन, तो जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे होंगे, जो हमारा 6th नॉलेज एरिया है, तो उसमें फिर हमें सोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन में वो हेल्प करेगा फॉर गिवन इनिशिएटिव और फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग. सो बेसिकली एंटरप्राइज एनालिसिस का कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जहाँ की जिसकी बिजनेस नीड, और अब हम बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं. सो we had covered these two tasks of this knowledge area, defining business need and assessing capability gaps, and now we are going to talk on determined solution approach. Then we will be defining solution scope, and we are going to define business case. So these three are actually part of the this thing, you know, defining nature of solution that meets the need, and justify the investment necessary is actually defining business case. So this is how we actually attend to that definition. And now let's move to the task number 3 of enterprise analysis, which is 4th knowledge area. So first we will have the purpose of this determined solution approach. जब हम बात करते हैं कि हमने सोल्यूशन हमें चाहिए है, सोल्यूशन हमने डिफ़ाइन करना है, तो उससे पहले हमें सोल्यूशन स्कोप जो है वो क्या उसका स्कोप होगा वो डिफ़ाइन करेंगे. और जब हम सोल्यूशन स्कोप की बात करते हैं तो वो सोल्यूशन स्कोप से पहले हमें उसकी अप्रोच चाहिए होगी. सो ये जो टास्क है ये हमारी उस ज़रूरत को पूरा करता है. सो टू डिटरमिन द मोस्ट वायबल सोल्यूशन अप्रोच to meet the business need in enough detail to allow for definition of solution scope and prepare the business case. So जिस तरह के अभी हम बात कर रहे थे कि हमें बेसिकली सोल्यूशन चाहिए होता है अपने प्रॉब्लम्स को अटेंड. अगर हम बिजनेस एनालिसिस की डेफिनेशन देखें तो दैट इज़ ऑल अबाउट सोल्यूशन थिंग. तो जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें फिर ऐसा सोल्यूशन देखना है जो विद इन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करे और विद इन लिमिट्स भी रहे. तो वो जो लिमिट्स हैं वो सोल्यूशन स्कोप से डिफाइंड होती हैं. सोल्यूशन स्कोप हमें बेसिकली फर्दर हेल्प करता है सोल्यूशन को डिफाइन करने में, और सोल्यूशन स्कोप जो है वो बनता है सोल्यूशन अप्रोच से. अगर हमें अप्रोच पता है तो हम अच्छी तरीके से सोल्यूशन के स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं, और हम फिर उसके बाद बिजनेस केस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. सो हमें एक जो बड़ी इनपुट जो हमें चाहिए है वो बिजनेस नीड हमने ज़हन में रखनी है, और इनफ डिटेलिंग हमने करनी है ताकि हमारा सोल्यूशन स्कोप जो है उसकी डिफाइन हो सके और बिजनेस केस जो है वो प्रिपेयर हो सके. सोल्यूशन अप्रोच डिस्क्रिप्शन. The solution approach describes a general approach that will be taken to create a
create or acquire the new capabilities required to meet the business need. So ये एक जनरल अप्रोच हमारी डिफाइन कर देता है which will be taken to create or acquire. दो तरह की हम चीज़ें कर सकते हैं. अब कैपेबिलिटीज़ हमने डिफाइन कर ली हैं कि हमारा कैपेबिलिटीज़ का गैप क्या है, क्या हमारी करंट स्टेट है वो हमें पता चल चुका है, और क्या हमारी जो फ्यूचर स्टेट जो हम चाह रहे हैं वो बिजनेस नीड के थ्रू हमें पता चल चुका है. उस जो गैप को या उस स्टेट के गैप को कवर करने के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट इनिशिएट करने हैं. उन प्रोजेक्ट्स को या इनिशिएटिव्स को टेकअप करने के लिए क्या हमारे पास रिक्विजिट कैपेबिलिटीज़ हैं, ये एक सवाल है जिसको हमने अटेंड करना है. तो अब वो जो कैपेबिलिटीज़ हमें जो रिक्वायर्ड हैं, न्यू कैपेबिलिटीज़ जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमारे आउटपुट था सेकंड टास्क का इस नॉलेज एरिया का असेस कैपेबिलिटी गैप, उसके अंदर अब हम दो तरीके से उसको देख सकते हैं. एक तो हम क्रिएट कर लें, दूसरा हम एक्वायर कर लें. क्रिएट करने से क्या मुराद है? क्रिएट करने से ये मुराद है कि हम अपनी टीम को जो है वो फर्दर मैच्योर कर लें और ट्रेनिंग्स करवा लें, या इस तरह का कुछ हम नए सिस्टम्स लेके आ जाएं, नई मशीनरी लेके आ जाएं, नया जो है वो हम पर्सन जो हैं वो हम कर लें. और एक्वायर मीन यू नो हम ये कर सकते हैं कि लाइक हम आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, लाइक हम मशीनरी भी लेके आ सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इवेंचुअली क्या है कि हमें न्यू कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बेसिकली जो हमारे बिजनेस नीड के लिए हैं उनको हम मीट करने के लिए चाहिए. तो ये जो अप्रोच है, दिस इज solution approach. So we need to determine solution approach. So to determine the solution approach, it is necessary to identify possible approaches. अब हमने जब solution approach करनी है तो उसमें हमने ये भी बात की थी, अगर हम इसकी दोबारा जाएं डेफिनेशन के ऊपर, most viable solution approach ओवर देयर जो अभी मैंने टिक की है, ये बेसिकली हमारी जो है वो कंसिडरेशन है. सो हमें ये देखना है कि जब हम मोस्ट वायबल की बात करते हैं तो हमें अप्रेजल का हमारे जहन में आना चाहिए, एक तरह से कि अल्टरनेटिव स्टडी का आना चाहिए कि हमने 3, 4, 5, 6 अप्रोचेज होंगी, उसमें से जो हमारी सबसे अच्छी अप्रोच है हम उसको अडॉप्ट करेंगे. सो ये है वो चीज़ कि हमें बेसिकली जो हमारी बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है जब हमने वो चूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें हमारे पास कुछ अप्रोचेज ऑलरेडी होना ज़रूरी है. So we need to determine, after we have identified all the possible approaches, determine the means by which a solution may be delivered, and including the methodology and life cycle to be used. तो हमने अब उसकी methodology भी पता होना चाहिए उस approach की और उसकी life cycle भी, and assess whether the organization is capable of implementing and effectively using a solution of that nature. तो अब अगर एक अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं, उसकी मैथडोलॉजी और लाइफ साइकिल भी हमें क्लियर है, उसके बाद जो अगली हमें चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन उस काम को करने की केपेबल है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके और उस सोल्यूशन को वो यूज़ कर सके इफेक्टिवली. अब जब हम बात कर रहे हैं कि अप्रोचेस जो हैं वो, तो सम पॉसिबल अप्रोचेस में इंक्लूड utilize additional capabilities of existing software hardware that is already is available within the organization. अब होता यह है कि अगर हम एक बात करते हैं कि कंप्यूटर है और इससे पहले वो बेसिकली वो हो रहा था, यूज़ हो रहा था एक पर्टिकुलर काम के लिए, लेकिन हम उसी कंप्यूटर के अंदर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो अब हमने क्या किया कि वो सेम रिसोर्स था उसको हमने एडिशनल कैपेबिलिटी उससे करनी शुरू कर दी. अगर हम बात करें एक कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की, तो हम बेसिकली हमारे पास ट्रैक्टर था जो हम कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे थे और उसके आगे ब्लेड लगा हुआ था. तो अब हम उसके साथ उसका हल जो है वो लगा के उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. या अगर हल लगा हुआ था तो वो या ट्रैक्टर ट्रॉली थी तो हम ट्रैक्टर के आगे ब्लेड लगा के उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. परचेज और लीज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फ्रॉम अ सप्लायर
उसके बाद अगर जो हमारे करंट नहीं है तो हम उसको या तो ख़रीद सकते हैं, वो जो हार्डवेयर है या वो जो मशीन है या वो जो हमारे सॉफ्टवेयर है, या हम उसको लीज पे ले सकते हैं किसी सप्लायर से। एंड देन डिज़ाइन एंड डेवलप कस्टम सॉफ्टवेयर, हम अपना जो है वो कोई प्रोसेस हम बना सकते हैं, हम अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एड रिसोर्सेज टू द बिजनेस और मेक ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, हम कुछ नए लोगों को हायर कर सकते हैं, हम नई वैकेंसीज क्रिएट कर सकते हैं और हम अकॉर्डिंगली नई पोस्ट जो हैं उनके ऊपर लोगों को रख सकते हैं। चेंज द बिजनेस प्रोसीजर्स प्रोसेसेस, अब बजाय कि हम एक काम पहले कर रहे थे और उसी को करते जा रहे थे, तो एक ये भी अप्रोच हो सकती है कि हम वो जिस तरीके से हम काम कर रहे थे उसको हम छोड़ करके दूसरा तरीके से काम शुरू कर दें। एक ये भी तरीका हो सकता है कि एक अच्छी एग्जांपल ये है कि हम पहले जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हम बेसिकली लोगों को जो डेली वेजेस पे हैं उनको हायर करते थे और हायर करके तो फिर उनसे काम करवाते थे या सब कॉन्ट्रैक्टर रखते थे। अब हमने ये सोचा है कि हम लेबर तो हायर ही किया करेंगे, लेकिन अब सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं करेंगे, हम अपना वहाँ एक जो है पर्सन उसको वहाँ बैठाएंगे। तो ये एक जो है वो तरीकाकार हो सकता है। एंड अदर इज पार्टनर विद अदर ऑर्गेनाइजेशन और आउटसोर्स वर्क टू सप्लायर्स। ये काम ये हो सकता है कि बजाय हम खुद से हम जेवी कर सकें, हम टीमिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं और हम काम को जो है वो आगे आउटसोर्स कर सकते हैं। सो ये कुछ डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी अप्रोचेस हो सकती हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ वी हैड टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ the description of determine a solution approach, and we have learned that we need to select one of the approach which actually is giving us helping us to reach to the business need. So one of the input is business need, क्योंकि हमने जो भी अप्रोच करनी है उसका एक मकसद है और वो मकसद ये है कि हमारी जो बिजनेस नीड है वो पूरी हो। अगर हमारी बिजनेस नीड पूरी नहीं हो रही तो हमारी वो अप्रोच हमारे काम की नहीं है। सो हमें बिजनेस नीड को फोकस करना है। सो पॉसिबल सॉल्यूशंस विल बी एवेलुएटेड अगेंस्ट द बिजनेस नीड टू इंश्योर दैट इट कैन बी मेट बाय द सिलेक्टेड अप्रोच। अब हमें जो चीज़ें देखनी है वो ये देखना है कि जो हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन है इवेंचुअली हमें चाहिए क्या है कि वो बिजनेस नीड को फुलफिल करे, और ये हमने इंश्योर करना है कि जो भी हमारी अप्रोच है, जो भी हम सिलेक्ट करते हैं, वो उसके थ्रू बिजनेस नीड और वो सॉल्यूशन जो है वो अचीव हो सके और बिजनेस नीड हमारी पूरी हो सके। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर दैट स्पेसिफिक अप्रोचेस be taken to solutions of a given type such as specific methodology। तो हमें बेसिकली OPA चाहिए होगा जो हमारे इसमें ऑलरेडी हमने काम काफ़ी किया होगा सोल्यूशन अप्रोच का डिफाइन करने में या डिटरमिन करने में। तो अब हम जो ऑर्गेनाइजेशन का चलता हुआ सिस्टम हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज़, ये बेसिकली आउटपुट था हमारे सेकेंड टास्क का, असेस कैपेबिलिटीज़ गैप। Business need was the output of the first task, that is define business need, and अब हम required capabilities भी हमें चाहिए हैं ये देखने के लिए कि जो भी हम अप्रोच डिटरमिन करें कितना गैप है। अगर हम एक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं या दूसरी करते हैं या तीसरी करते हैं तो क्या वो विद इन लिमिट रहता है या वो उसके बाहर हो जाता है। सो आइडेंटिफाइज द न्यू कैपेबिलिटीज दैट एनी सोल्यूशन मस्ट सपोर्ट। सो ये चीज़ हमें बेसिकली हेल्प करेगी। तो ये 3 इनपुट्स हैं और लेट्स हैव दिस इनपुट आउटपुट डायग्राम। सो वी आर हैविंग बिजनेस नीड एंड वी आर हैविंग OPAs एंड वी आर हैविंग रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज डिटरमिन्ड कि हमें क्या चाहिए कैपेबिलिटीज। वी नीड टू डिटरमिन सोल्यूशन अप्रोच। So we will apply some techniques over there, and जब हम techniques apply करेंगे तो then we will have one output that is solution approach।
which will then be used in defined solution scope, which is the fourth task of this knowledge area. So this is the third task, and see, input is the first task, output the second task, output OPAs, and applying techniques we get this output solution approach through third task, and that task's output will be used in fourth task. So this is basically all about this input output thing and applying techniques. So now as we have gone through that, let's talk on elements. So one of the element is alternative generation. So identify as many potential options as possible to meet the business objectives and fill identified gaps in capabilities. The list of possible alternatives should include the option of doing nothing, as well as investigating alternatives that may allow the organization to buy time. So अभी हमें इतने ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वो जो alternatives हैं वो जनरेट करने हैं. उसमें हमें बेसिकली एक ऑप्शन हम ये भी रख सकते हैं कि हम कुछ भी ना करें और उसको भी एवेलुएट करें, और हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है अल्टरनेटिव्स को कि जो हमें ऐसे अल्टरनेटिव्स भी देखने हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को टाइम बाय करने में हेल्प करें, थोड़ा सा डिले कर लें, वो भी हमें सारे देखने होते हैं. तो हमें सिर्फ यही नहीं कि उसका सोल्यूशन करना है, बल्कि हम उसको कैसे टाइम बाय कर सकते हैं वो भी हमें देखने होते हैं. दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है assumptions एंड constraints, इसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस नॉलेज एरिया के अंदर, बट ये एक एलिमेंट है हमारे डिटरमिन सॉल्यूशन अप्रोच का. सो assumptions that may affect the chosen solution should be identified. जो भी हम सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया है और जो भी हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है, जब हम बात करते हैं कि बेस्ट, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया है. सो सर्टेन सॉल्यूशंस मे बी रूल्ड आउट बिकॉज दे आर बिलीव्ड नॉट टू बी वायबल टेक्निकली और फॉर कॉस्ट रीजंस, while others approaches may be believed to be easier to execute than they really are. So ये बेसिकली कुछ assumptions के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं. तो हम जो भी अप्रोचेस करेंगे तो उसके साथ कुछ को हम वैसे ही रूल आउट कर देंगे कि जी ये तो वायबल टेक्निकली है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं इस तरह करना. और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनको हम बहुत हम आसान समझते हैं जितनी वो नज़र आ रही होती है उससे. Similarly, the organizations may be constrained from pursuing certain solution options for contractual reasons or because they do not fit with the infrastructure of the organization. हम बेसिकली हमें काम मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि हमारा $10 मिलियन का है, और पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, और हम वो काम जो है वो सोच रहे हैं कि उसको चाइना के अंदर हम वेयर हाउस वगैरह बना के उधर से वो काम करवा लेते हैं. लेकिन हमें पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हमने विद इन पाकिस्तान ही अपना काम करना है, और हमने बाहर से जो है वो रिसोर्सेज को एंगेज नहीं करना है. तो ये एक तरह से कॉन्स्ट्रेंट आ गया हमारा, हम ये अप्रोच अब यूज़ नहीं कर सकते, हमें कोई दूसरी अप्रोच जो है वो डिस्कस करनी होगी. सो कॉन्स्ट्रेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो जिनको जो टीम के कंट्रोल से जो उनको लिमिट करती हैं, उनके ऑप्शंस को, जो टीम के ऑप्शंस को लिमिट करती हैं, और अजम्पशंस वो होती हैं जिनको सच समझा जाता है लेकिन वो अनसर्टन होती हैं. एंड उसके बाद जो हमारी एक एलिमेंट है वो है रैंकिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोच. हमने डिफरेंट अप्रोचेस कर ली, अल्टरनेटिव जनरेट कर लिए, सबका assumptions और constraints देख लिए. अब उसके अंदर हमने रैंकिंग करनी है और फिर हमने अप्रोच को सिलेक्ट करना है. जो सबसे ज़्यादा टॉप रैंक्ड होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे. इन ऑर्डर टू असेस एन अप्रोच, record available information and analyze the operational, economic, technical, schedule-based, organizational, cultural, legal, organizational, legal and marketing feasibility. ये हम डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो हम देख सकते हैं. एनवायरमेंटल भी हो सकता है,
तो ये इन पैरामीटर्स के ऊपर हम अप्रोचेस को असेस करते हैं. कैप्चर कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑप्शन टू मेक इट ईजियर टू कंपेयर दैम एंड रिव्यू रिजल्ट्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस. फिर हम ये करते हैं कि उनका सबका जो इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हम कैप्चर करते हैं, उनको फिर रैंक करते हैं और रैंक करके फिर हम उस अप्रोच को सिलेक्ट करते हैं. जो हमारी टेक्निक्स हैं जो इस हम के लिए यूज़ करते हैं इस टास्क के लिए, डिटरमिन सॉल्यूशन अप्रोच, उसमें एक है बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग इज आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशन अप्रोच दैट हैव प्रूवन इफेक्टिव इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ ऐसी अप्रोचेज हैं जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बड़ी इफेक्टिव साबित हुई हैं, तो आपने वो आइडेंटिफाई करनी है. और अगर वो बाकी में ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव हैं तो आपके यहाँ भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी वो इफेक्टिव हो सकती हैं. देन ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज्ड एज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जो है हम जो डिफरेंट हमने अल्टरनेटिव्स की बात की, अल्टरनेटिव जनरेशन की बात की, ये एक टेक्निक है जो उसके अंदर हम लोगों को बैठा के अपनी टीम को, बिजनेस एनालिसिस टीम को या दूसरे स्टेक होल्डर जो हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे जो ऑपरेशनल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको बैठा करके उनसे राय ले लेते हैं, उनको डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं. तो उससे फिर हमें जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आते हैं जो सॉल्यूशन अप्रोच के, उसके अंदर से फिर हम अच्छा जो है रैंक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. डिसीजन एनालिसिस, रैंक एंड सेलेक्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अप्रोचेस. डिसीजन एनालिसिस ऑल अबाउट के हमने कुछ पैरामीटर सेट किए होते हैं जिसके ऊपर हर अप्रोच को हम देखते हैं, उसके ऊपर उसको परखते हैं, असेस करते हैं और उसके जो बेस्ट हो उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं. एस्टिमेशन, डेवलप इनिशियल कॉस्ट कंपैरिजंस ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन अप्रोचेस. एस्टिमेशन बेसिकली जो भी उसकी आपने कॉस्ट देखनी है, ऑब्वियसली जो भी आप इनिशिएटिव करने जा रहे हैं या जो भी आप सॉल्यूशन डिप्लॉय करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी स्कोप डिफाइन करना है, तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा आपकी अप्रोच के ऊपर. तो आप एक रफ एस्टिमेट कर लीजिए कि जो भी आप अप्रोच कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट जो है वो प्रोबेबल है और अकॉर्डिंगली फिर आप फर्दर जो है कोई डिसीजन करेंगे और फिर जा कर के आप फर्दर देखेंगे कि ये अप्रोच रिकमेंडेड है या नहीं. SWOT एनालिसिस, दिस इज अ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ कंपेयरिंग पॉसिबल अप्रोचेस. जो भी आपकी पॉसिबल अप्रोचेस हैं उनको कंपेयर करने के लिए आप उनका देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं उस अप्रोच की, क्या वीकनेसेस हैं, क्या वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है और क्या थ्रेट्स वो आपके फर्दर जो जनरेट कर सकता है. तो ये बड़ा अच्छा एक एनालिसिस है जिसके ऊपर आप बैठ करके आप सॉल्यूशंस अप्रोच जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. फिजिबिलिटी एनालिसिस, दिस इज अ स्टडी एंड इट्स primarily preliminary analysis of solution alternatives or options to determine whether and how each option can provide an expected business benefit to meet the business need. So ये एक हमें बेसिकली एक रफ अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो भी हम सॉल्यूशन अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करते हैं वो कैसे जो है वो हर ऑप्शन जो है वो हमें एक्सपेक्टेड जो बेनिफिट्स जो हम सोच रहे हैं बिजनेस नीड को मीट करने के लिए वो कैसे वो देगा. और उसको जो फिजिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर हो सकती हैं. टेक्निकल फिजिबिलिटी हो सकती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो सकती है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी हो सकती है, फिर एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी हो सकती है, सोशल फिजिबिलिटी हो सकती है, लीगल फिजिबिलिटी हो सकती है, रेगुलेटरी फिजिबिलिटी. सो काफ़ी तरह की फिजिबिलिटीज़ के ऊपर हम जा करके ये एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं. कौन कौन से हमारे जो हैं स्टेक होल्डर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. एक तो हमारे कस्टमर्स वो जो हैं और इसके अलावा जो हमारे डोमेन SMEs हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, एंड यूज़र एंड सप्लायर. ये बेसिकली हमारे सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर
हमारे जो हैं वो स्टेक होल्डर हो सकते हैं, जो कि हमें डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं और साथ में हमारी हेल्प कर सकते हैं कि क्या इन पर्टिकुलर अप्रोचेस की अजम्पशंस हैं और क्या इनके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. सो दे मे बी वेरी हेल्पफुल. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं. उनकी हमें ज़रूरत होगी टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ पॉसिबल अप्रोचेस. जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें सिर्फ और एंड यूज़र्स हैं और जो हमारे डोमेन एसएमईज हैं और सप्लायर्स हैं वो हमें बड़ा अच्छा चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन हम फिर उनको वैलिडेट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी फिजिबिलिटी और वो सारा कुछ वो फाइनलाइज कर लेंगे. स्पॉन्सर क्योंकि चैंपियन होता है किसी भी इनिशिएटिव का, so he may or she may be the source of constraints on the solution options and will likely to be required to prove the recommended approach. So he is one of the very important stakeholder. And the output we will be having will be a solution approach. Solution approach अब आ गई है हमारे पास. Description of the approach that will be taken to implement a new set of capabilities. कि हमने जो न्यू सेट कैपेबिलिटीज का लगाना है वो हमें बता देगा कि कैसे करना है. अप्रोच आ जाएगी हमारे पास. सोल्यूशन अप्रोचेस डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कंपोनेंट्स दैट विल बी डिलीवर्ड. जो हम सोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं तो क्या कंपोनेंट्स हैं उसका हमें बता देता है. न्यू प्रोसेसेस हैं, न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, न्यू हार्डवेयर है, न्यू मशीन्स हैं एक्सेट्रा. एंड मे आल्सो डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी दैट विल बी यूज्ड टू डिलीवर दोज कंपोनेंट्स. तो ये इसकी हमें मेथोडोलॉजी भी इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो पता चल जाती है. सो दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज ऑल अबाउट determine solution approach, which is the third task of knowledge area enterprise analysis. Let's have a summary of this talk. We have 5 tasks in this knowledge area. The first task is define business need. उसके बाद फिर दूसरा था assess capability gaps. और जो अभी हमने तीसरा टास्क जो आज हमने सेशन में किया वो है डिटरमिन सोल्यूशन अप्रोच. और अब जो लॉजिकली हमारे पास आ जाती है वो है डिटरमिन सोल्यूशन स्कोप. सो इसके बाद फिर हमारा पांचवा रह जाएगा डिफाइन बिजनेस केस, उसको हम फिर इसके बाद करेंगे. सो डिफाइन सोल्यूशन स्कोप टू डिफाइन विच न्यू कैपेबिलिटीज अ प्रोजेक्ट और इटरेशन विल डिलीवर. सो जो भी न्यू कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी प्रोजेक्ट जो भी डिलीवर करेगा वो हम उसका जानना चाहते हैं, या जो भी हमारा इनिशिएटिव है या इटरेशन है वो डिलीवर करेगी. सो दिस विल बी डिफाइंड इन दैट टास्क. सो डिफाइन सोल्यूशन स्कोप. द पर्पस ऑफ दिस टास्क इज टू कंसेप्चुलाइज द रिकमेंडेड सोल्यूशन इन इनफ डिटेल to enable stakeholders to understand which new business capabilities an initiative will deliver. So the solution scope includes the scope of analysis which provides the context in which the solution is implemented. ये हमें बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट बता देता है जिसके अंदर हमने सोल्यूशन को जो है इम्प्लीमेंट करना है या अप्लाई करना है. The capabilities supported by solution components such as business processes, organizational units, and software applications. The capabilities to be supported by individual releases or iterations. The enabling capabilities that are required in order for the organization to develop the capabilities required to meet the business need. So ये हमारे चीज़ें हैं जो कि solutions को का हिस्सा हो सकती हैं. जो हमारे inputs हैं उसमें आ जाएगा assumptions and constraints. ये हमें requirement जब हम analysis करेंगे तो वहाँ हम इसके ऊपर बात करेंगे. But assumptions and constraints are input to define solution scope. So relevant assumptions and constraints may include assumptions about how stakeholders will respond to a new product or service or about the availability of the technology. Constraints may include limitations on what may be included in solution scope, include any schedule or funding limitations,
and significant standard policies, regulations to be followed and supporting data required. तो ये बेसिकली हमारे कुछ constraints हो सकते हैं और कुछ assumptions हैं जो input हो सकती हैं. उसके बाद एक जो चीज़ है वो है बिजनेस नीड. बिजनेस नीड जो है, क्योंकि इवेंचुअली हमने बिजनेस नीड जो है अचीव करनी है. सो द गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें बेसिकली चाहिए. रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज, सो इट डिस्क्राइब्स the new capabilities required to meet the business need which serve as basis for the solution scope. And solution approach, the general approach taken to delivery of the new capabilities required by the business will be used when assessing options for the implementation of solution components. तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें solution components जब डिफाइन करने हैं और उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें एक अप्रोच चाहिए है जिसकी हमने बात की थी, डिटरमिन सोल्यूशन अप्रोच, वो वहाँ से आ जाएगी और अब हमारे सोल्यूशन स्कोप के अंदर वो एक इनपुट बन जाएगी. सो इफ वी सी दिस इनपुट आउटपुट डायग्राम, वी हैव business need, one of the in output of the first task of this knowledge area, and knowledge area is enterprise analysis, and define business need was the first task, and required capabilities was the output of the second second task of this knowledge area, that is assess capability gaps, and solution approach, which was the output of determine solution approach, which is the third task. And now we want to define solution scope, and we will apply techniques necessary, जो कि आगे हम उसकी बात करेंगे, और we will get a solution scope. Now this solution scope, but one input is left, that is assumptions and constraints, and as I've told you, this is the fifth knowledge areas, fourth task, assumptions and constraints वहाँ से आती हैं. that is requirement analysis knowledge area, हम इसको relevant section में देखेंगे. अब हमारे पास solution scope आ गया. अब जो ये solution scope है, ये बेसिकली हमारा कहाँ इनपुट होगा? प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन. अगर आपको याद हो, हमने जब प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन, जो कि फर्स्ट टास्क था एलिसिटेशन का, सेकंड नॉलेज एरिया का, तो उसके अंदर ये इनपुट था. उसके बाद कंडक्ट एलिसिटेशन एक्टिविटी, जो सेकंड हमारा टास्क था एलिसिटेशन का, उसके अंदर भी ये था. उसके बाद डिफाइन बिजनेस केस, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट जो हमारा टास्क है इस नॉलेज एरिया का, जो लास्ट टास्क है, उसके अंदर भी ये इनपुट होगा. उसके बाद प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स का ये बेसिकली इनपुट है. ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट्स उसका इनपुट है. और फिर जब हम रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई रिक्वायरमेंट्स उसका इनपुट है. एलोकेट रिक्वायरमेंट्स हम जब सिक्स नॉलेज एरिया के बात करेंगे तो उसका सेकंड टास्क का हमारा इनपुट है. और असेस ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस क्या है, उसके अंदर हमारे ये इनपुट है. उसके अलावा ये रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के अंदर जो है ये जो उनके हमारे टास्क्स हैं उसके अंदर भी ये इसका यूज होता. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इनपुट एंड आउटपुट डायग्राम ऑफ डिफाइनिंग. सो लेट्स हैव eye on elements. So what are elements of this task? Solution scope definition. हमें सबसे पहले एक चाहिए कि what is the definition, and that is the solution is described in terms of the major features and functions that are to be included, and the interactions that solution will have with the people and systems outside of its scope. State in scope and out of scope components of the solution. We need to also state these things, in scope and out of scope components of the solution. So जो भी हम solution की बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है बेसिकली? वो मेजर फीचर्स हैं और फंक्शंस हैं जो कि हमें चाहिए. solution की हमने बार बार बात की, तो eventually solution is anything which is a new feature. और जो फंक्शन हमें चाहिए वो हमें एक सॉफ्टवेयर से भी मिल सकते हैं, वो हमें किसी भी प्रोडक्ट से मिल सकते हैं. तो सोल्यूशन में भी अ प्रोडक्ट और सर्विस और रिजल्ट. सो बेसिकली हमें उसको डिफाइन करना है कि क्या
है चीज़ वो, एंड द इंट्रैक्शंस दैट सॉल्यूशंस विल हैव विद पीपल, और लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो लोगों के साथ कैसे इंट्रैक्शन होगी, एंड सिस्टम आउटसाइड ऑफ इट्स स्कोप। उसके बाद जो हमारी चीज़ आ जाती है, जो सेकेंड इनपुट है वो है इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। द इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच डिस्क्राइब्स हाउ द chosen solution approach will deliver the solution scope. For example, if the solution approach involves partitioning the proposed project into releases that will deliver useful subsets of functionality to the business, the implementation approach will describe the functionality in each release and the time frame that it is expected to be delivered in. तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच का हिस्सा बनती हैं। And dependencies define major business and technical relationships and dependencies that will impose constraints to the effort to deploy the solution, including dependencies that may exist between solution components. So हमें ये बेसिकली डिफाइन करना है कि जो हमारे मेजर बिजनेस है और जो हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके अंदर जो रिलेशनशिप है उसको हमने डिफाइन करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे लिए एक फर्दर कॉन्स्ट्रेंट होगा जो भी हम जब हम सोल्यूशन को डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारी टेक्निकलिटीज़ हैं और जो हमारे बिजनेस की थिंग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एलिमेंट विच वी नीड टू कंसिडर व्हाइल वी डिफाइनिंग सोल्यूशन स्कोप। एंड नाउ we will talk on techniques of defined solution scope. So functional decomposition is one technique to understand the scope of work and to break the solution scope into smaller work products or deliverables, just like we create WBS. Interface analysis depict the scope of work required to integrate the new solution into business and technical environments. This is more like computer thing. Scope modeling identify appropriate boundaries for the solution scope. User stories describe stakeholders and the goals the system supports, and as such can be used to define the solution scope. So user stories are very good techniques because they describe stakeholders and the goals of the systems support, and as such can also be used to define the solution scope. तो बेसिकली वो सारी स्टोरीज हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं। प्रॉब्लम और विजन स्टेटमेंट, इट स्टेट्स द बिजनेस नीड जो कि हमारी डिफाइन हो चुकी है, आइडेंटिफाइज की स्टेक होल्डर and briefly describes the positive impact that meeting the business need will have on those stakeholders. So this is a vision statement or problem statement. So ये टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन आइडेंटिफाइंग द अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, मॉडलिंग द स्कोप ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्रायोरिटीज ऑफ रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन एलोकेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज टू सॉल्यूशन कंपोनेंट्स and determining the time and effort required to deliver new capabilities. Project managers may assist with the development of the overall solution scope, which will be used as an input into project charter, and sponsor will participate in setting priorities and approving the solution scope. So ये कुछ stakeholders हैं, और what will be the output? We will be having solution scope as output. So it will define what must be delivered in order to meet the business need and the effect of the proposed change initiative on the business and technology, operations and infrastructure. ये हमारा solution scope जो है वो define होगा. So अभी तक हमने 4 tasks इस knowledge area के अंदर कर लिए हैं. डिफाइन बिजनेस नीड जो है वो हमारा बेसिकली हमें बिजनेस नीड दे देता है। असेस कैपेबिलिटी गैप्स, जो अब हमारी जो भी बिजनेस नीड है उसको करने के लिए जो कैपेबिलिटी गैप्स है वो आ जाते हैं, कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड आ जाती हैं। डिटरमिन सोल्यूशन अप्रोच से हमारी जो सोल्यूशन अप्रोच आ जाती है, और उस सोल्यूशन अप्रोच और बिजनेस नीड और कैपेबिलिटी गैप्स को हम मद्देनजर रख के हम सोल्यूशन स्कोप बना लेते हैं। और अब हम जो लास्ट वाला टास्क है, ये सारे इनपुट्स हम यूज करते हुए डिफाइन बिजनेस नीड जो है वो इसको अब हम देखेंगे। So let's start then. To determine if an organization can justify
द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ प्रपोज सोल्यूशन। सो ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो भी हमने अब नीड हमने आइडेंटिफाई कर ली हुई है, हमने जो कैपेबिलिटी गैप है वो देख लिया, उसको हमें पता है कि हमारी क्या ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या लेकिन हम एक स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं और अब हमारे पास सोल्यूशन अप्रोच भी आ गई और सोल्यूशन का हमने स्कोप भी डिफाइन कर लिया। अब हमें ये देखना है कि जो भी हम काम करना चाह रहे हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के वो हक में है या नहीं है, क्या जो वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रपोज सोल्यूशन डिलीवर करने जा रही है क्या वो जस्टिफाइड है इन्वेस्टमेंट के नहीं। सो दिस इज डन इन बिजनेस केस। बिजनेस केस इज अबाउट एक्चुअली जस्टिफाइंग द इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर एनी प्रपोज सोल्यूशन। So let's have the description. The business case describes the justification for the project in terms of the value to be added to the business as well as results of the deployed solution as compared to the cost to develop and operate the solution. अब हमें जो बेसिकली चीज़ें करनी है, एक तो हमें ये देखना है कि जो हम नया इनिशिएटिव करने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो बेसिकली बिजनेस केस जो है वो जस्टिफाई करता है हमारे प्रोजेक्ट को। तो जो हम जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करते हैं वो हमारे बिजनेस केस से हमें मिलती है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू टू बी एडेड टू द बिजनेस। जो हम क्यों आएगी वो वैल्यू, क्योंकि वी विल डिप्लॉय अ सोल्यूशन एज कंपेयर टू, ये एक बेनिफिट आ जाएगा कि हमने अगर अब डिप्लॉय कर दिया है तो क्या वैल्यू हमें मिल रही है, और साथ में कंपैरिजन होगा टू द कॉस्ट टू डेवलप एंड ऑपरेट द सोल्यूशन। एक तो हमें जो वैल्यू मिल गई है, हमने एक सोल्यूशन डिप्लॉय कर दिया है, उसकी एक वैल्यू है, वो मुनाफा भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, वो कुछ दूसरे स्ट्रेटेजिक गोल्स भी हो सकते हैं जो प्रॉफिट के अलावा हैं, लेकिन हम प्रॉफिट को लेते हैं। लाइक अभी हमें ये पता चलना चाहिए कि क्या ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आएगा। अब वो जो प्रॉफिट हमारा उस प्रोजेक्ट करने से आएगा, कंपैरिजन उसके साथ कि जो हमारी कॉस्ट आएगी, हमने कंपेयर करना है प्रॉफिट को और कॉस्ट को। कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉफिट हमारा कम है और कॉस्ट हमारे ज़्यादा है, या हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और जो बेनिफिट है वो कम है। सो अभी हमें उसकी वैल्यू को कंपेयर करना है कॉस्ट के साथ, जो कि हमने ऐसी कॉस्ट जो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में या उस सोल्यूशन को डेवलप और ऑपरेट करने में हमारी आती है। So the business case may also include qualitative and quantitative benefits as well, estimates of cost, time to break even, profit expectations and follow on opportunities like ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हो सकती हैं। टाइम टू ब्रेक इवन या हम इसे पे बैक टाइम भी, पे बैक पीरियड भी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, The business case may present expected cash flow, consequences of action over time, and the methods and rationale that are used for quantifying benefit and cost. This provides a framework to demonstrate how the initiative is expected to achieve business objectives. In addition, the business case lists the constraints associated with the proposed project along the estimated budget and alignment with strategies established by the organization. Inputs. So these are few inputs. Assumptions and constraints include assumptions about the revenue generated or retained by the solution or non-financial improvements it will deliver. और इसी तरह उसके जो constraint हैं जिनके अंदर है कि हम ये चीज़ achieve करेंगे. Business need defines the value that a solution will deliver to the organization and how it aligns with business goals and objective. हमें जो alignment है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, उसको हमने लाजमी देखना है कि जो वैल्यू हम कह रहे हैं सोल्यूशन की, ये नहीं कि प्रॉफिट आ रहा है। अब हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि जी हमें एजुकेशन जो है लिटरेसी रेट जो है वो एक एरिया का उसको बढ़ा के 10% से बढ़ा के उसको 40% पे लेके जाना है, और उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो बता रहा है जी कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है इस पे 20% प्रॉफिट हुआ है। आई मीन दिस वाज नॉट द टारगेट सेट, राइट। ये एक एनजीओ का प्रोजेक्ट था जिसका मकसद लिटरेसी रेट बढ़ाना था, ना कि पैसे कमाना था। सो वी नीड टू डिफाइन द वैल्यू विच विल डिलीवर टू द ऑर्गेनाइजेशन, और वो कैसे वो जो वैल्यू है अलाइन है उसके बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ।
Solution scope. So it defines the capabilities that will be implemented, the methods that will be used to deliver them, and the areas of organization that will be affected. And then stakeholder concerns may include risks or issues that must be accounted for in business case. So business case के अंदर ये कुछ inputs हैं. We are having assumptions and constraints. We do know that what do we want to get, and then solution scope is there. Stakeholder concerns जो हैं हमारे वो हमें चाहिए. तो उसके बाद फिर हमें define करना है business case को. We will apply necessary techniques and we will have a business case which will be used in prepare for elicitation, first task of second knowledge area elicitation, conduct elicitation activity, prioritize requirements, verify requirements, validate requirements, and requirements management and communication tasks. एलिमेंट्स जो इसके अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं वो है बेनिफिट्स. वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं. measure the benefits of the recommended solution in terms of both qualitative and quantitative gains to the enterprise. Where possible, benefits should be quantified. ज़्यादा tangible हों तो ज़्यादा वो meaningful होते हैं. Costs. Estimate the total net cost of the solution. Now, this is not only सिर्फ कि हम एक जो solution की cost है, बल्कि कौन-कौन सी cost है. This requires estimate to be made of capital expenditure for the new investment, cost of developing and implementing the change, opportunity cost of not investing in other options, costs related to changing the work and practices of the organization, total cost of ownership to support the new solution, and consequential cost borne by others. ये सारी cost हम basically इसमें estimate करेंगे. Risk assessment. The purpose of initial risk assessment is to determine if the proposed initiative carries more risk than organization is willing to bear. So that is also an element of business case. Results measurement. The business case articulates not only the projected cost and benefit to be realized, but also how those costs and benefits will be assessed and evaluated. We will apply techniques like decision analysis, cost-benefit analysis, compares the cost of implementing a solution against the benefits to be gained. Estimation forecast the size of investment required to deploy and operate the proposed solution. Matrices and key performance indicators (KPIs) assessed to support benefit management, measurement, and reporting, including where a realignment of internal measures or system is needed to ensure that the behaviors we are seeking can be seen, evaluated, and realized. So other techniques are risk analysis, used to assess potential risks that may impact the solution and the cost and benefit associated with it. SWOT analysis, it demonstrates how the solution will help the organization maximize strengths and minimize weaknesses, what are opportunities and threats associated with that. And vendor assessment, if purchase or outsourcing to a third party is in consideration, an assessment of the vendor may be performed as part of the business case. और उसके बाद जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्पॉन्सर जो है वो इसको अप्रूव करता है बिजनेस केस को और ऑथराइज करता है फंडिंग को. जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो असिस्ट करता है इन एस्टिमेटिंग बिजनेस बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू इनिशिएटिव. जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है असिस्ट करता है इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट प्रोजेक्शंस फॉर द टेक्नोलॉजी नीडेड टू सपोर्ट द न्यू सोल्यूशन. हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन डेवलपिंग टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स and may develop a preliminary project plan or work breakdown structure in collaboration with project team. The project manager will use the business case as an input for a project charter. जो हमारी बहुत शुरू की input होती है project management के अंदर, that is a business case, और वो project manager को basically यहाँ से मिलता है. And in the end we get to the point where we actually have business case with us. So it presents the information necessary to support a go or no-go decision to invest
and move forward with the proposed project. So this is all about this knowledge area. We had talked on 5 tasks. We now know that there are 5 tasks in enterprise analysis knowledge area. Define business need. We need to define कि हमें करना क्या है, किस स्टेट पे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं. Then assess capability gap, कि हमें क्या capabilities हमें और चाहिए उस तक जाने के लिए. Then we need to determine solution approach, and then we need to define solution scope, and in the last we need to define business case. And let's have the definition again, and let's see if we can understand the definition now in better situation or with a better understanding or not. Okay, so enterprise analysis knowledge area describes the business analysis initiative necessary to identify a business need, problem or opportunity. So ये अब हमें जो हम business need है उसको identify करने की position में आगे हैं. Define the nature of solution that meets the need. So हमें solution approach और solution scope ये हमने define कर लिया है. And justify the investment necessary to deliver the solution. तो basically ये हमने business case के अंदर इसकी justification कर ली है. So basically ये हमने सारे काम, और अब हम we are ready to go to requirement analysis and solution identification. इसके ऊपर हम आप काम करने के लिए ready हैं. So this is all about this lecture. In this lecture we had talked about enterprise analysis knowledge area and 5 tasks of enterprise analysis, and we have talked about determine solution approach. We have talked about solution defining solution scope, and we talked about defining business case. So this is all from my side today. Thank you very much and happy reading. Allah Hafiz.